forex exchange risk is integral part of doing international business, and the values of major currencies constantly fluctuate against each other, creating an income uncertainty for your business. So because there is a lot of volatility in foreign exchange, so it can cause ups and downs in your bottom line. So basically, you what you try to do is you manage that risk. You should be not be exposed to the foreign exchange. Okay, if there is a positive development, then you should be able to get that. But if there is the exchange rate goes not in your favor, then you should be able to manage. So this can be achieved through USD INR chart hai 10 saal ka. So you can see there's a lot of fluctuation which happens, but the overall trajectory is that dollar is appreciating Strengthening. compared to the Indian rupee. And we can see this is the chart from 1947 to 2021. So, to start with 1947, it was, 4 rupees 76 paisa per dollar. Today it's gone to 77 in 2022. But if you see the bottom line, the dollar has been appreciating at 4% on an average, which captures the inflation differential between the two countries, between America and India. अभी तो अमेरिका में भी आजकल 6-7% इन्फ्लेशन हो रही है, but if you go by till 21, the inflation differential was basically 4%. India is around 6%. In America, it's less than 2%. So because of that, the rupee always depreciates as the rupee, because the value of the dollar is preserved over the time because of the higher inflation in India. Because the dollar purchasing power remains in tandem with rupee. Even if the inflation goes up, the dollar has to go up to compensate the inflation effect in India. So basically, what you do is you lock in the future exchange rate, either through forward or futures or options. Okay, but some business regard exchange movement as a profit opportunity. For some people, even if the exchange rate is going up, it benefits them, because if they happen to be exporters or receivers of the foreign exchange. The simplest risk management strategy for reducing the foreign exchange risk is to make and receive payments in your own currency. If you don't want the foreign risk, then you have to bill in your own currency. That means India has to bill in rupees, whether they are importing or exporting to, say, America or any other country. But most of the countries will not like to do that. Okay, so you might also lose customers to competitors, because if you do that, because the competition will be offering exchange rates in their currency. So since this is not a very good idea, the currency risk. So there are two techniques through which you can hedge the currency risk. One is through internal techniques within the business itself. The second is involving all those futures, forwards, external techniques involving a third party, so which are mainly forward, futures, and options. So internal techniques, first is leading and lagging. So leading means advancing a payment, that is making a payment before it is due. Suppose you are an importer, you think the dollar will go to 80, so you have still 2 months time to pay. You can pay it now, and avoid that loss because of the exchange rate movement. For example, a company has to import 1 lakh goods from abroad. Today the dollar is at 75, suppose, and the money is payable after 6 months. So if this guy expects that the dollar to appreciate significantly, so he plans to pay the amount upfront. Considering that there is going to be hefty increase in dollar, so he can make the payment in time much before, and avoid that forex risk. Okay, because suppose the Fed is going to tighten nowadays, the American bank, the Central Bank of America, they are raising the interest rates there. So it may cause the dollar to touch 80 in a very short time. It was 75 just a month back. Today it's about 77, because the Fed has already tightened their interest rates, and they expect to tighten further by, say, 100 basis point. So it will be always better for an importer to pay it now rather than pay it at a higher price later. Second is lagging. For example, there is a company which is going to receive their dues, their export receipts from UK. Okay, if you expect that pound sterling to fall in future, fine, then you are going to actually lose money. So what happens when you pay, when we say that the Indian firm is clearing its receivables? So which means that the 1 pound, which is equivalent to 102.5, assuming it is, but of course now it is around close to 95. So the time when we made the slide was 102.5. Suppose if the pound goes to 100 per pound, so you're going to lose if you're an exporter. So what you're going to do is you're going to press for a prompt payment from the
from your customer so that you get your money at 102.5. So if it is possible. Then invoicing in domestic currency. As I told you, if you invoice in in rupee, and if the rate is say for the exports at the time of export, suppose the dollar rate is 75, and the amount is going to be received after 6 months. So if you have invoiced at 75, and after 6 months if the dollar goes to 70, so which is then the risk is shifting to the person who is your customer rather than to you. So because you will receive 75,000, but the importer has to pay $1071 against $1,000 earlier, because he is going to lose on the exchange rate, because the dollar was 75 and now it is 70. So 75,000 divided by 70, so he has to pay 1071 point. So in this way, you are actually transferring the risk to your customers or your suppliers, in case if you are doing your invoicing in your own currency. But this is largely not acceptable in the international trade. If it is, then you can always take that. Then the netting, basically. For example, exposure netting is a method of hedging currency risk by offsetting exposure in one currency with an exposure in the same or other currency. For example, if X Limited owes $1 lakh to its group company X USA Limited for goods supplied, and X USA Limited also owes $80,000 for the services provided to X. So then they can go for netting instead of having a full transaction that X pays $1 lakh to X USA Limited and X वो USA 20,000 कोई hedge करेंगे. हाँ, They should तो hedge वो 20,000. उससे आपका सिर्फ 20,000 रुपीज का एक्सपोजर आ जाएगा, बाकी hedge हो जाएगा. Yeah, absolutely right. So then you can do it in another currency also. If suppose your dues are in dollars, but your customer has suppose UK has owes 78,000. They have supplied the goods, and they have to pay 78,000 pounds. So, and if the rate of the $1 is 78 pound, so that means there will be total net off between your money which you owe to UK Limited and whatever they owe to you. So it will get completely net off, even if it is in different currency. So this is exposure netting, same or another currency. So both examples are there. So now we come to the main part where we use forwards, futures, options, and swap contracts basically to basically hedge ये your आपने foreign. मुझे भेजा नहीं, ये प्रेजेंटेशन नहीं भेजा आपने ये मुझे. नहीं भेजा? अच्छा, हो सकता है मैंने कोई गलत शायद हाँ, अटैच हो गया, तो मैं आपको ये भेज देता हूँ. ठीक है, Okay. ठीक है. So पहले तो इसमें दूसरी है इंटरनल टेक्निक्स है which you can read, they are very simple. Now we go to the main part, forward, futures, options. These three we are going to do it with some examples, and we'll go to the stock exchange and understand as far as future and options are concerned. So forward contracts. So a forward contract is a customized contract between two parties to buy or sell an asset at a specified price on a future date. So here basically you're fixing your forward rate. You go to the bank and take a forward cover, and it's a customized contract. So you can choose any amount of dollars. Okay, whether it is $1,50,000 or $2,75,000 or any particular date also you can choose. So it's a totally customized, where it is designed as per the needs of the customers. A forward contract. Normally you go to a bank or financial institutions to take a forward cover, but it is normally a bank in India. So a forward contract can be used for hedging or speculation, although its non-standardized nature makes it particularly apt for hedging. So forward contracts are actually, in India, they are 100% used for hedging, and they are called non-standardized nature because, if you go to the futures, then there is a lot size and there are expiry dates. So there, you can't, this is a customized contract, a forward contract where you can choose any date, any amount, whereas in futures, it's a standardized product. So so a forward contract is very good, hedging technique, as it is totally designed for your needs. So a currency forward contract is customized, a written contract between parties that sets a fixed foreign currency exchange rate for transaction that will occur in a specified future date. So that means if suppose you have you're an importer and you are importing some equipment from abroad and you have to pay $1 lakh in the month of say July. So today the rate is 77. If you go to the bank says, I'm going to charge, say 78 rupees. Okay. So you may think the dollar may go 80 rupees. So you will lock in your contract, forward rate at 77, which the bank is offering you for making the payment of the dollar at 77, at 78, rather than the spot rate
which is 77, because the dollar is at premium as we go along. If your forecast is that dollar is going to touch 80 because of the Fed tightening or some kind of your own forecasting, so you can just hedge yourself. So whatever happens, you pay your money at 78. Fine. The only downside is that if the dollar goes to 75, then you lose that advantage. Okay, in a forward contract, it's in hedging, so you get the if it goes against or not in favor, in your favor, you are hedged, because you don't have to pay anything more than 78, even if the dollar touches 90. But if the dollar touches 70, then you are not going to get that advantage. Okay, so that in that case, we go to the options contract. Later on, I'll explain that. So future date for which the currency exchange is fixed is usually the date on which the two parties plan to conclude the buying or selling transaction. So future date is when when you expect that you have to make the payment. Suppose the payment has to be made on, say, 25th of July. So you will ask your banker that I need dollars, $1 lakh on 25th of July. So give me the rate on that day. So he'll just calculate and he will go to the interbank market and see what is the rate in the futures, in the forward market, and he'll give you the rate after charging his commission. So if it suits you, you will take that rate. Okay, and when the 25th of July comes, you have to pay at that rate. Okay, so there are examples, so I'm going to cover those examples. So I'm just giving here. Okay, so again some so basically this is again some repetition. So a currency forward contract is a customized written contract between two parties that sets a fixed foreign currency exchange rate for a transaction set for a specified future date, which means it's a customized contract totally designed for your need in terms of what currency you want and what date you want. So everything is customized as per your requirement. Currency forward contracts are used to hedge foreign currency exchange risk, because even if the dollar goes to say $80, you are going to get your dollars at the rate which you have fixed at the time of entering this contract. Okay, so they are most commonly made between importers and exporters headquartered in different countries. So currency forward contracts are primarily utilized to hedge against currency risk. Again, same thing. It protects the buyer or the seller against unfavorable currency exchange rate occurrences that may arise between when the sale is contracted and when the sale is actually made. It happens, that the dollar goes to 80 and you are not hedged yourself, so you have to actually, make your payment at 80 rupees, whatever goods you have imported from abroad. So it protects against that kind of unfavorable currency exchange rate occurrences. So now this is that. However, parties that enter into forward contract forego the potential benefit of exchange rate changes that may occur in their favor between the contracting and closing transaction. Suppose if the dollar goes to say 70 rupees per dollar and you have taken a forward contract at say 78, so that means you have to make payment to the bank. You have to make the payment to the bank at 78 per dollar for 1 lakh, so it will be 78 lakhs. Whereas if you have not taken a forward cover, you have been paying only 70 lakh rupees, because the dollar is 70 rupees today at the time when you are making on the date on which the actual transaction happens. Suppose the dollar is 70, so you lose that benefit of if the currency goes in your favor. So examples of a forward contract. So there is a company called A Limited. They have imported some chemicals worth USD 3,64,897 from one of the US suppliers. The amount is payable in 6 months' time. So this amount is going to be paid after 6 months' time. The relevant spot and forward rates are this. So this is the spot rate. Bid rate is an ask rate. So when you're making a payment, you're importer, look at the ask rate. It is your buying rate. But if you're an exporter and you're going to get dollars from abroad, then you look at the bid rate. So this ये बिडास बताना चाहिए इनको एक सेशन लेकिन क्योंकि क्या होता है कि आप बताना चाहते हो, नहीं तो आप रेट हटा दो, बिड एंड आस्क, यू से दिस द स्पॉट रेट इफ यू वांट टू मेक योर स्लाइड सिंपल, क्योंकि वो सेशन वही मिलेंगे ना एक दो उसके अंदर सारा वो आप उसमें ये तो तब है जब आपने पहले ये चीज बता दी हो कि बिड क्या होता है आस्क क्या होता है. चलो ठीक है, हाँ, तो वो आप थोड़ा अमेंड कर देना टू मेक इट सिंपल. 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट ये है, बिड रेट ये है, आस्क रेट है. आप ये देखोगे 74.22 स्पॉट रेट था आस्क वाला जो आपको एप्लीकेबल है. अब यहाँ जो जा रहा है 6 महीने के बाद वो 74.32 जा रहा है. ओके, आई विल शो यू द a site where you can know what are the rates prevailing 6 months forward, 8 months forward, 10 months forward, 12 months forward, 1 month forward. So I'll just मैंने लिंक डाला हुआ था, इस स्लाइड में नहीं है, तो आपको लिंक भी दिखा दूंगा. तो जब स्टूडेंट्स को दिखाना है कि go to the site and look at the rates also, prevailing
6 months hence from now. So अभी रेट चल रहा है 74.327. If you book a forward contract today, you can make the payment at 74.327. But if you don't book a contract, of course, today's spot rate is applicable for today only, so you can't make the payment today. So then, then the spot rates after 6 months. अगर suppose spot rate 6 months के बाद ये होते हैं, okay, या आप कह सकते हो कि spot rate की जगह forecasted rate. That means what you expect that what will be the rate, based on your own analysis, the rates are going to be like this, 74.87, which is your rate. So आप ये देखोगे कि आपका जो बैंक का रेट आ रहा है वो 74.32 आ रहा है, और जो फोरकास्टेड रेट है या स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स है वो तो तब पता चलेगा जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे. तो 74.86 का आपने फोरकास्ट करा है. सो शुड ही हेज हिज एक्सपोजर और लीव इट अनहेज्ड? सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू विल आस्क. एक आप समझाओगे, 2-3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, वो उससे वो आपको आंसर करेंगे. ठीक है. सो इसमें क्या है कि आप क्या कैलकुलेट करोगे? अमाउंट पेबल इज दिस, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट दिया हुआ है. अब मैंने मल्टीप्लाई करा उसको आस्क रेट से 3,64,000, तो इतना आपका 6 मंथ्स के बाद आपका पैसा जाएगा 2,71,21,699 रुपए. अगर हम जो फोरकास्टेड रेट लें या स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ जो हो जाएगा, बट ये तो मतलब हाइंडसाइट में हम देखेंगे कि हमें वो लेना चाहिए. तो आप इसको कर सकते हो स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ की जगह योर फोरकास्ट फॉर द 6 मंथ्स की क्या रेट रहेगा. तो अब रेट हो जाता है 74.86. सो इफ इट इज नॉट हेज्ड, then you have to pay 2,73 lakhs. So now you compare the two. So you say option 1 is better to take the forward cover, because अगर आप option 1 cover से लेते हैं जिसमें hedging करते तो आपका outflow होता है 2,71,00,000. और अगर आप you would have left it unhedged, and if the forward rate would have been at a high rate, you would have paid 2,73,16,000. So आप ऐसे भी लाइन सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी क्वेश्चन नहीं करता. आप अगर कोई कहे तो आप कह सकते हो कि जो फॉरवर्ड रेट है, हमने जो 6 मंथ्स का स्पॉट रेट लिया हुआ है, यू कैन अज्यूम दिस इज योर ओन फोरकास्ट. ओके, कि समझ गया, क्योंकि ऑल कंपनीज डू देयर ओन फोरकास्टिंग. तो बेस्ड ऑन दैट दे यूज हेजिंग दिस थिंग, कि हेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो यू कैन इवन मेक इट लाइक दैट. ओके. सो फिर एक और मैंने एग्जांपल दिया सेम, कि ये कंपनी है, ये इंपोर्ट कर रही है और 5 लाख पाउंड्स जो है इसने माल खरीदा है. तो अमाउंट ये फिर स्पॉट रेट दिया हुआ है और ये तीनों रेट दिए हुए हैं. शुड ही हेज और नॉट? तो इसका आंसर भी दिया हुआ है. तो हमने लगाया कि अगर वो 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट देता है तो उसको 5,01,63,500 रुपए देने पड़ते हैं एट द 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट. तो क्योंकि $5 लाख का एक्सपोजर था, 5 लाख पाउंड का एक्सपोजर था. और अगर स्पॉट रेट आफ्टर 6 मंथ्स होता है तो फिर उसके 5,04,30,000 रखते हैं. तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ फॉरवर्ड कवर, बिकॉज हेजिंग इज better, because he is because the spot rate after 6 months was higher. Okay, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया. ये ठीक है? करेक्ट. ओके, अब करते हैं सेकंड एक्सरसाइज. सारे इंपोर्टर के ही हैं. he has an import bill of $1,30,000. Okay, the exporter has given the Indian exporter 2 options. Okay, एक इंपोर्टर है, उसने $1,30,000 पे करना है. तो एक्सपोर्टर ने उसको 2 ऑप्शंस दिए हैं. एक, पे इमीडिएटली विदाउट एनी इंटरेस्ट, अभी पे कर दो, कोई इंटरेस्ट मैं चार्ज नहीं करूंगा. सेकंड, पे आफ्टर 3 मंथ्स विद एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम. द इंपोर्टर्स बैंक, यानी कि जो हम इंपोर्टर हैं उसका बैंक 15% अमाउंट चार्ज करता है ओवरड्राफ्ट में. क्योंकि हम जब कंपेयर करेंगे, अगर अभी हम इमीडिएटली पे करते हैं तो इसका मतलब है 15% का हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हम 3 महीने के बाद पे करते हैं तो हमें इन दोनों को करना पड़ेगा. आप आंसर देखो, समझ आए. एक्सचेंज रेट आर एज फॉलोज. अभी जो स्पॉट रेट ये है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट ही है. ओके, तो दोनों रेट दिए हैं, कि आज का रेट भी दिया हुआ, 3 मंथ का फॉरवर्ड भी दिया है. आज पे करे तो 74.36 से पे करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रेट में 74.83 से पे करना पड़ेगा. द इंपोर्टर इज सीकिंग योर एडवाइस. तो अब हम देखते हैं, इफ द इंपोर्टर पेज, ही विल हैव टू बाय $US इन द स्पॉट मार्केट बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू द आउटफ्लो अंडर दिस ऑप्शन. सो अगर वो अभी पेमेंट करता है तो उसको बैंक से अपना जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो लेनी पड़ेगी, एज्यूमिंग दैट ही इज यूजिंग ओन मनी और ही इज यूजिंग बैंक मनी. सो अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज, ये तो है स्पॉट कट चार्जेस 74.36. तो $1,30,000 ने पे करना है एट द स्पॉट रेट विच इज 74.36, विच मीन्स 96,66,800 रुपीज उसका लग जाएगा. ओके, अगर हम देखें कि हम कंपेयर करना है कि 3 महीने का, तो हमें उसका 3 मंथ का 15% इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा. तो उसका टोटल आउटफ्लो जो होगा 1,29,29,000 होगा. अगर हमें एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है तो हमें 3 महीने का 15%
इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि assuming that he is taking a bank loan, even if he is using his own money, there is an opportunity cost. So to compare the two things, we have to have an interest. Okay. So ये स्पॉट रेट था जो हमने लगाया, नीचे आ रहा है आपका 74.36, उसके हिसाब से हमने उसकी पेमेंट कर दी और उस पर 3 महीने का ब्याज लगा दिया, टू कंपेयर द बोथ ऑप्शंस. अब आते हैं ठीक सेकंड है। में. इफ द इंपोर्टर मेक्स अ पेमेंट आफ्टर 3 months, देन ही विल हैव टू पे एन इंटरेस्ट फॉर 3 months, क्योंकि उसको देना पड़ेगा अपने एक्सपोर्टर को फॉर 3 months का. तो यहाँ पर $1,30,000 की अमाउंट है, इस पे वो 5% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है $1,625. सो दैट मीन्स नाउ ही हैज टू पे $1,31,625. तो अगर हम अब 3 महीने का फॉरवर्ड रेट लगाएं तो अमाउंट आ जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट था 74.83 और अमाउंट देना है आपको 1,31,000 इंक्लूडिंग 5% इंटरेस्ट विच द एक्सपोर्टर इज चार्जिंग बिकॉज ही इज गिविंग यू 3 months क्रेडिट. तो अगर हम देखें तो दोनों केस में तो हमें लगता है कि भाई ऑप्शन 2 बेटर है, जिसके अंदर की आपने इंटरेस्ट पे करने के बाद भी फॉरवर्ड रेट का जो प्रीमियम पे करा तो आपका जो आउटफ्लो आया था वो 98,49,000 आया था अगेंस्ट योर फर्स्ट ऑफ 1 crore, बिकॉज इंटरेस्ट रेट वेरी हाई इन इंडिया. सो दैट्स ये ठीक है. एक सेकंड. हाँ जी, एक मिनट. हेलो. हाँ. वो कब हो रहा है? अब कितने बजे होगा ये पता नहीं. हाँ अभी निकाल लो, अगले दिन का भी देख लेते हैं. हाँ नहीं अभी पूछना पड़ेगा उससे. मैं भी एक मीटिंग में हूँ, फिर करता हूँ. हाँ जी. हाँ. तो Sorry. ये वाला ठीक है. समझ गया. हाँ. हाँ. तो इसमें मतलब अगर वो अभी पे करता है तो 15% इंटरेस्ट लगा के स्पॉट रेट का रेट लगाया और दिखाया तो तो हेज हाँ तो हेज बराबर है 1 करोड़ का आउटफ्लो होता है. अगर वो 5% इंटरेस्ट देता है 3 महीने का ट्रेड लेके 98 लाख सप्लायर, तो फिर रेट आता है उसका 74.83 एंड ही पेज इट मनी अमाउंट कम्स टू 798 crores, 98 lakhs. So option 98 number 1 is better since the outflow of 2 cash is better. sorry option 2 is better because उसमें outflow कम है. Okay, fine. तो अब हम देते हैं फ्यूचर्स करेंसी फ्यूचर्स मार्केट. सो दिस वाज फर्स्ट. पर इसमें सारे एग्जांपल इंपोर्टर के ही थे, वहां साले एक्सपोर्टर बैठे हाँ होंगे. एक्सपोर्टर भी तो है, ये था ना एक एक्सपोर्टर हमने करा था ना यहाँ पर. अभी मैं एक्सपोर्ट वाला भी डाल दूंगा आपको, एक्सपोर्ट वाले भी एग्जांपल दे आप दूंगा. डाल देना. हाँ मैं डाल दूंगा, हाँ आपको दे दूंगा. क्योंकि ज्यादातर एक्सपोर्टर होंगे. हाँ ठीक है. अमाउंट पेबल ये वो भी जैसे एक डाल देना ना, एक दो हाँ एक मैं एक्सपोर्टर का डाल दूंगा. ये ये दोनों हाँ सारे इंपोर्टर ही हैं. तो आपका मैं एक्सपोर्ट वाला भी मैं एक क्वेश्चन आपको डाल दूंगा इसके अंदर. ठीक है. ठीक है. ओके. समझ गया. तो हम चलते हैं क्या कहते हैं नेक्स्ट में. हाँ करेंसी फ्यूचर्स मार्केट. ओके. नाउ इन इंडिया द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट. द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन यूएसडी INR. तो सारी करेंसी में नहीं कर सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर, यूरो, पाउंड, जापान, जापानीज करेंसी, ये 4 अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर आपका एक्सपोजर यूएस डॉलर में है, आपका एक्सपोजर यूरो में है, आपका एक्सपोजर पाउंड में है, आपका एक्सपोजर जापानीज येन में है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना रिस्क कवर कर सकते हैं. ओके. पहला एक चीज बताओ सर, ये जो फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं बैंक्स में, मतलब 5 साल उसके ऊपर वो भी रहते हैं क्या? हाँ 1 साल है, आप ले सकते हो, लेकिन 5 साल तक जनरली कोई आदमी क्यों लेगा पता नहीं मुझे, लेकिन 1 साल तक तो है. अब देखो आप, अगर मैं आपको रेट दिखाऊं एक सेकंड, जैसे आप मार्केट में जाते हो. ओके आई जस्ट शो यू द रेट. इसमें मतलब जब हम वो कहते हैं ना इकोनॉमिक एक्सपोजर्स, उसमें लॉन्ग टर्म कॉल्स लेने होते हैं तो ले उतने सकते हो. लंबे मिलते हैं. बैंक क्या है, यूएस में तो आपको क्योंकि मिलते हैं, यूएस में तो आपको बैंक लंबे दे सकता है. ही कैन डिजाइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो. ओके. ओके. सो ये देखो फॉरवर्ड रेट्स हैं. ये मैं आपको आपकी आ रही है ये स्लाइड, ये हाँ दिख रही नेट आ रहा है. है. तो आप ये देखो, ये फॉरवर्ड रेट्स हैं. ये तो स्पॉट रेट है आज का. नहीं अभी मुझे वो नहीं दिख रहा, वो तो आपको ही दिख रहा है. वो तो आपको शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना. अच्छा मैं आपको इसको अनशेयर करके उसको शेयर करना पड़ेगा ना मेरे साथ. अच्छा मैंने एंटायर स्क्रीन नहीं करी हुई ना. हाँ क्योंकि मेरे इस पे तो आपका खाली यही शेयर हो रहा है. ओके. ये मैं दिखा देता हूँ. ये मैं लिंक भी भेज दूंगा आपको. तो अभी जो है यूएस डॉलर का रेट चल रहा है 77.5. ये एफएक्स एम्पायर क्या कोई डीलर है? हाँ ये साइट है एक्चुअली, मतलब जो है जिसमें कि आपको फॉरवर्ड रेट सब मिलते हैं. ये मतलब फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ही है वर्ल्ड का. ओके.
तो अब ये जो है आपके फॉरवर्ड रेट्स हैं। ओके, तो ये फॉरवर्ड रेट देखो आप 10 मंथ्स, 11 मंथ, 1 ईयर तक जा रहे हैं। अगर आप हाँ। 1 साल से ऊपर जाते हो, क्योंकि जो कोटिंग होती है वो 1 साल तक होती है। ओके, अच्छा, फाइन। तो वो कस्टमाइज करना पड़ेगा फिर उसके लिए। हाँ, बैंक के पास जाओगे तो ही विल गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दैट। ओके, तो और अब 1 साल तक की आती रहती हैं रेट्स हाँ, फॉरवर्ड 1 साल की। के रेट्स तो एप्लीकेबल है, रेडीली अवेलेबल है। ओके, नाउ बैंक्स कैन गिव यू इवन 2 years रेट इफ यू वांट। ओके, सो कई लोग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, 2 साल तक तो है, मैंने पर सुना है। ये जो रेट्स अवेलेबल हो रहे हैं, ये तो रिटेल पर्सपेक्टिव से होंगे ना, इंटर बैंक तो नहीं है ना ये नहीं ये नहीं, तो ये कोई भी ले इंटर बैंक सकता है। रेट हैं, दीज आर ऑल इंटर बैंक रेट्स। ओके, जो अच्छा, ये इंटर रेट बैंक कोट रेट्स होते हैं। हैं, जो रेट कोट होते हैं वो इंटर बैंक होते हैं। ये बैंक्स के हाँ, लिए हैं आपस में डील करने, ये दिस इज तो नॉट फॉर वही द। कह रहा हूँ, तो अगर अगर आदमी जाएगा फिर तो ज्यादा पे मिलेगा ना, इससे इस पे चार्ज हाँ, लगाएगा वो इस बैंक। पे क्या होता है, इस रेट पे पॉइंट हम्म। वन जीरो परसेंट डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक 0.10% ऐड हो जाता है। ओके, अच्छा, जब वो अगर आप आम रिटेल इंपोर्टर, कस्टमर को देते हैं। आप अगर आस्क रेट देख रहे हो, यानी इंपोर्टर का, इसमें 0.10 ऐड हो जाएगा, और ये इसके ऊपर 0.10 लेस हो जाएगा। तो यानी कि आपको मिलेगा कम। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपको 77 रुपए 59 पैसे दूंगा, हाँ। वो कहेगा मैं 77 रुपीज 50 पैसा दूंगा आपको। ओके, हम्म। क्योंकि अपनी 0.09 पैसा अपनी कमीशन काट लेगा, इसके अंदर वो कमीशन ऐड कर लेगा, 77.66 कर देगा। पॉइंट वन समझ जीरो गया, समझ गया। परसेंटेज जो है इस टाइम जो नॉर्म चल रहा है बैंक्स का, दे आर चार्जिंग देयर तो ये कमीशन। 0.10 सबके लिए है, मतलब आम आदमी के लिए है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को तो और बढ़िया रेट्स दे देते हैं ना कई हाँ बार कॉर्पोरेट्स। हाँ, डेफिनेटली, अब ऑफ कोर्स जब कॉर्पोरेट जाते हैं तो दे कैन नेगोशिएट मोर आल्सो। सो और अब पॉइंट आप वन एक जीरो एक हमारे बार लिए आप है, अगर चेक कर मैं लेने लेना, एक जाऊंगा। बार गूगल पे चेक कर लेना व्हाट इज द यू नो उसको हम देखते हैं अभी बाद में। अब यू कैन चेक ऑन हम्म। द गूगल व्हाट इज द करंट रेट, क्योंकि हमारे ठीक है, यहाँ ठीक। जितने भी हमने देखे हैं उसमें 0.10 के हिसाब से, या सीए के अंदर स्टडी मटेरियल जो लेटेस्ट अपडेट हो जाता है, तो उसके अंदर ऐसे हम्म। क्वेश्चन है। 0.10% जो है एक्सचेंज कमीशन जो है बैंक्स की, समझ जो गया, लेटेस्ट भी आया हुआ वो यही था। अभी भी देखना पड़ेगा आज क्या क्या चल रहा है। सो वी कैन जस्ट गो समझ टू गया, दैट, समझ बट वील जस्ट पार्क दैट क्वेश्चन, we'll go to the ठीक है, ठीक Google and find out the rate also. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अगर आपने स्पॉट रेट देखने, तो ये स्पॉट रेट है। जैसे ये स्पॉट रेट वाली है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। ये आप देख रहे हो कि अगर आपने जो स्पॉट रेट देखना है, इंटरबैंक स्पॉट रेट है, वो ये रेट हम्म। चल रहा है यूएस डॉलर का। अभी ये अपडेट नहीं हो रहा, तो विल फाइंड द रेट की क्या है, ये आ जाएगा आपका। किसी भी करेंसी समझ को गया। आपने देखना है तो यू कैन जस्ट गो हेयर। तो आप ग्रेट ग्रेट ब्राउन, जापानीज, इंडियन रुपी, ओके, यू कैन लुक एट। सो आई एम जस्ट पुटिंग इन पर्टिकुलर, आई जस्ट शेयर दिस स्पॉट रेट वाला और फॉरवर्ड रेट वाला दोनों मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ वापस इस वाली स्लाइड पे। पहले मुझे शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक द शेयरिंग हैज लिंक इज हम्म। गॉन, है ना। ओके, आर यू एबल टू सी द स्लाइड्स? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हमने बताया कि आपको ये वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये हाँ। 4 करेंसीज में आप अपना रिस्क कवर कर सकते हो। दीज आर अवेलेबल एज ऑफ टुडे इन द स्टॉक एक्सचेंज, एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, देयर आर मैक्सिमम 12 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी अच्छा, आप अगर कोई पूछता है अगर कोई और करेंसी है तो उस केस में क्या करेगा फिर वो? तो फिर आपको फॉरवर्ड मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है कि बाकी जो करेंसीज हैं वो हार्डली, अब चाइनीज युआन हो सकता है एक, है ना, जो एक करेंसी हो सकती है जिसमें आप जा सकते हो, या आई मीन और भी हो सकती हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ ये चारों ही करेंसीज हैं जिसके कि अभी पेयर एप्लीकेबल है। देन ही हैज तो टू गो टू द फ्यूचर्स पे फॉरवर्ड आप मार्केट। इन्हीं 4 पे खेल सकते हाँ, हो। बाकी सिर्फ फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू ही जा सकते हो आप। ओके, फाइन। सो अब हम्म। मैक्सिमम 12 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूं आपको कि 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अभी जैसे मई चल रहा है तो मई का हम्म। कॉन्ट्रैक्ट है, जून का कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई का है, अप टू अप्रैल 23। 12 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और सबके रेट चल रहे हैं। तो आपको सपोज अगर आपने अपनी पेमेंट करनी है इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो आप जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। ओके, फाइन, और वो रेट देखेंगे कि क्या रेट चल रहा है, फॉरवर्ड रेट, यानी फॉरवर्ड का जो काउंटर पार्ट फ्यूचर रेट क्या चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, सो आई विल टेक यू टू द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो दे आर 12 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। बट अभी क्या कर रहा है मार्केट ने, टू मेक द मार्केट्स फॉर यूएसडी आईएनआर फ्यूचर डीपर एंड मोर लिक्विड, एनएससी हैज नाउ लॉन्च्ड वीकली करेंसी फ्यूचर्स फॉर यूएसडी आईएनआर। तो अभी हमने वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ चुके हैं, सिर्फ
यूएस डॉलर के लिए। अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, 12 होते थे, गेम वाज वेरी सिंपल, बट अभी 4 हमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलते हैं। यानी किसी आदमी ने किसी वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जाना है तो वो जा सकता है। अगर सपोज पेमेंट उसने हर मई में, महीने के 4 आते हैं। हाँ अगर पेमेंट मई में ही करनी है, मई 25 को करनी है या मई 20 को करनी है, देन ही विल गो फॉर अ वीकली कॉन्ट्रैक्ट। सो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट इज डन। ओके, अभी आएगा। ये एक्सपायर कब होते हैं? ये एक्सपायर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, यानी 30th और अच्छा, 31st, जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा। यानी जैसे अगर संडे है स्टॉक में तो 31 तो 30 थर्सडे को, होता है। हाँ बिल्कुल, स्टॉक में तो थर्सडे होता है ना, इसमें लास्ट वर्किंग डे होता है इसमें। हाँ उसमें स्टॉक एक्सचेंज में थर्सडे है, इसके अंदर लास्ट वर्किंग डे है, आइदर ओके, 30th और 31st, वट एवर मे बी। कि अगर ठीक है, 31st को संडे पड़ जाता है तो 30th को हो जाता है। अगर समझ 20th गया। फरवरी है तो 20th को ही क्लोज होगा, 20th संडे है तो 27th को क्लोज होगा। ओके, हम्म, अच्छा लॉट साइज जो है वो $1000 में है, यानी कि $1000 से बिलो आपने कोई आपका एक्सपोजर है तो उसको आप कवर नहीं कर सकते, और इट हैज टू बी इन मल्टीपल ऑफ $1000। ओके, और €1000 और £1000 और 1 लाख येन। करेक्ट। अगर आपका एक्सपोजर मान लो कि $1500 का है, तो या तो आपको $1000 का में खेलना पड़ेगा या $2000 में लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। आइदर यू विल बी अंडर हेज्ड और ओवर हेज्ड, सो दे आर नॉट कस्टमाइज्ड, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड। इट हैज टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ $1000 और €1000 और £1000 और 1 लाख येन लॉट साइज। अभी हम चलते हैं लॉट साइज का क्या है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं सीधा साधा, देन आई टेक यू टू द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, examples of hedging using currency futures contract. Suppose XYZ is an importer. Okay, on 15 November, this is a little older when I gave this presentation, on 15 November 2021 को एक आदमी को जो है पेमेंट करनी है $1 लाख की। कब करनी है? 31 दिसंबर को। आज 15 नवंबर है, एंड यू नो ही हैज एन एक्सपोजर ऑफ $1 लाख, एंड ही हैज टू मेक दिस पेमेंट ऑन 31st of December. ओके, on 15 November he'll go to the stock exchange. Okay, dollar future is trading at 74.60. This is the last trading price. जैसे ही उसने स्क्रीन खोली, उसने देखा कि जो 31 दिसंबर की पेमेंट जो उसने करनी है उस महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्राइस ₹74.60 चल रहा है, और अभी का स्पॉट प्राइस जो चल रहा है 15 नवंबर का, वो ₹74.27 चल रहा है। यानी मार्केट में जाओ तो आपको ₹74.27 मिलता है, लेकिन जो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये अभी 1 महीने आगे का है, तो वो ₹74.60 का अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, which is going to be expiring on 31st of December. ओके, तो दिस इज द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो जब आप फ्यूचर में जाओगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट सेट करोगे, तो हो सकता है कि आपको रेट ₹74.59 मिले या 61 पैसे मिले, बिकॉज दिस इज द मार्केट। ये लास्ट ट्रेडेड था जिस आदमी ने लास्ट ट्रेड करा था। अब आप नया एंटर करोगे तो हो सकता है आपको कुछ ज्यादा मिले या कम मिले। अगर आप चाहते हो कि 74.60 ही मिले, तो आप लिमिट प्राइस लगा दो कि मुझे इतने में ही खरीदना है डॉलर। तो अगर तो वो मार्केट कभी भी 74.60 टच करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई विल शो यू दिस इन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब क्योंकि $1 लाख है और 1000 का कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको 100 कॉन्ट्रैक्ट में यू नो यू हैव टू टेक अ पोजीशन। 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी। क्या पोजीशन लेनी पड़ेगी? यू हैव टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन। आपको बाई करना पड़ेगा करेंसी फ्यूचर्स, क्योंकि आप क्या है, इंपोर्टर हैं। अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको बाई करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो आप जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है उसकी ऑपोजिशन पोजीशन देते हैं वैसे, टू जस्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है तो यू आर शॉर्ट इन डॉलर्स, तो यू आर टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन करेंसी फ्यूचर्स। तो या तो आप याद रखो एज एन इंपोर्टर है तो यू हैव टू बाई करेंसी फ्यूचर। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको करेंसी फ्यूचर्स सेल करना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, आपने 100 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स बाई कर लिए। ओके, और आपने रेट लगाया है ₹74.60 का, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया ₹74.60 का। ठीक है, फाइन। अब आपको 3%, इस टाइम 3% मार्जिन मनी चल रहा है टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? 74,60,00,000 की, सॉरी 74,60,000 की। तो इसका 3% बनता है 2,23,000। ये आपको इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराना पड़ेगा मार्जिन। ओके, फाइन। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इस केस करने के बाद आपको एक्चुअली लाइव डेमो दूंगा। उसके बाद सपोज नाउ एक्सपायरी होती है 31 दिसंबर। ओके, तो उसके अंदर अब रेट बढ़ जाता है डॉलर का, क्योंकि आपने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है और रेट बढ़ जाता है। तो रेट क्या लिया जाता है? जो आरबीआई का रेफरेंस रेट होता है ऑन 31st ऑफ दिसंबर, वो रेट माना जाएगा फॉर सेटलमेंट ऑफ द करेंसी ट्रांजेक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एज्यूम द रेट इज लास्ट डेट पे वो माना जाता है। हाँ जी, मेरा लास्ट डेट पे जो आरबीआई का रेफरेंस रेट है वो माना हाँ जाता वो है। माना जाएगा। तो आरबीआई पब्लिश करता है वो जो लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है 31 दिसंबर लास्ट डेटिंग है,
तो वो उस दिन का आरबीआई रेफरेंस रेट जो है वो माना जाएगा आपकी सेटलमेंट रेट के लिए। तो अभी हो गया 75 रुपए 90 पैसे, आपने पोजीशन ली थी 74 रुपए 60 पैसे में, ओके, तो डॉलर बढ़ गया, तो इट्स अ गुड न्यूज, यू विल बी मेकिंग अ कैश प्रॉफिट, क्योंकि आपने लॉन्ग पोजीशन ली थी, डॉलर बढ़ गया, तो आपको 1,30,000 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि आपने $1,00,000 पे ये गेम खेली थी। तो आपको जो है जो प्रॉफिट हुआ वो जो है डिफरेंस 75 सेटल रुपए। होता है ना इसमें, हाँ जी, इसमें डिफरेंस सेटल होता है ना खाली हाँ फ्यूचर्स हाँ, मार्केट इसमें में। डॉलर नहीं मिलते, इसमें कुछ नहीं मिलता, डॉलर तो हाँ, आपको स्पॉट सिर्फ मार्केट से डिफरेंस खरीदने सेटल होता पड़ेंगे। आपको है। एक हाँ, लाख 30,000 रुपए कैश प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको डॉलर नहीं मिलेंगे इन द फॉरवर्ड मार्केट, एक्चुअली यू हैव विल गेट डिलीवरी ऑफ डॉलर्स, और यू विल बी टेकिंग डिलीवरी ऑफ डॉलर इफ यू आर एन एक्सपोर्टर और एनी अदर करेंसी। तो वहां डिलीवरी सेटलमेंट होता है फॉरवर्ड मार्केट में, यहां सिर्फ कैश सेटलमेंट होता है। अब आपको 1,30,000 मिल जाएंगे, मार्जिन विल गेट रिलीज, आपका मार्जिन मिल गया, आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। Now importer has to pay 75,90,000 on 31st। अब इंपोर्टर हो, आप जाओगे स्पॉट मार्केट में और अपने इंपोर्टर को आप 75 रुपए 90 पैसे के हिसाब से 75,90,000 दे दोगे, लेकिन आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ 74,60,000, क्योंकि आपको 1,30,000 तो स्टॉक एक्सचेंज से मिल गए और आपने दिए 75,90,000, तो आपको हाँ, जो है हेजिंग होगी 74 रुपए 60 पैसे के हिसाब से। सो दैट मीन्स यू आर परफेक्टली हेज्ड एट 74.60। करेक्ट, ओके, बट नाउ नेक्स्ट केस में क्या होता है, अगर रेट 73 रुपए 60 पैसे कम आया, हो गया। तो अब आप क्या करोगे, यू विल सफर अ लॉस ऑफ 1 लाख, दोनों का रेट डिफरेंस जो होगा उसमें 1 लाख का लॉस हो जाएगा आपको, मार्जिन विल गेट रिलीज, बट आप इंपोर्टर को दोगे पैसे करंट रेट के हिसाब से 73-60 के, और आपको 1 लाख रुपए का लॉस है, तो फिर भी आप 74 रुपए 60 पैसे पे अटके हो, तो चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, तो एक केस में आपको स्टॉक एक्सचेंज से फायदा हो रहा है, जब आपने लॉन्ग पोजीशन ली यू मेड अ गेन, करेक्ट, so that will basically, that gain is going to offset your losses in the spot market when you are making the payment। but इस केस में क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, but you are making a gain in the spot market, so gain in the loss in the stock market and gain in the spot market will get even out, and your hedging will be at the rate at which you have decided at the time of the beginning of the contract। 74 रुपए 60 पैसे के हिसाब से ही आपकी पेमेंट हो रही है। या अगर आपको दोबारा दिखाऊं मैं, समझ समझ गया गए, मैं। चलो ठीक है, अब देख लो, हाँ, फाइन। अब देखते हैं हम हाँ, एक्सपोर्टर केस में, ओके, हम्म, XYZ इज एन एक्सपोर्टर। अब इसने फिर 1 लाख रुपए, सेम है, 1 लाख रुपए जो है इसके इसके पैसे मिलने हैं इसको, और 15 नवंबर की डेट है, और 31 दिसंबर को इसको पैसे मिलने हैं, तो ही गो टू द स्टॉक एक्सचेंज। सेल करेगा। तो यहां पर जो है आपकी एक्सपायरी वही है, रेट वही है, 74 रुपए 60 पैसे चल रहा है, तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट सो रहेंगे, नाउ ही इज गोइंग टू सेल द करेंसी फ्यूचर्स, बिकॉज अब जब नीचे गिरेगा रेट, यू आर एन एक्सपोर्टर, आपको फायदा होगा, क्योंकि इन एक्सपोर्टर यू आर टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन डॉलर्स, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट डॉलर्स, सो यू हैव अ लॉन्ग पोजीशन एक्चुअल बिजनेस में, बट यू हैव टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो यहां बेच दो गया, तो जब भी डॉलर नीचे जाएगा तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, ओके, स्टॉक एक्सचेंज में, बट आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा एक्चुअल मार्केट में। तो यहां देखते हैं मार्जिन आपको 3% देना पड़ेगा वही। अब हम पहला केस देखते हैं कि डॉलर बढ़ गया, अब डॉलर रेट सॉरी डॉलर कम हो गया, ओके, डॉलर 73 रुपए 10 पैसे का आ गया, आपने 74 1.5 रुपए लाख 60 का पैसे फायदा। में खेला था फ्यूचर्स, तो आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, तो आपको कैश प्रॉफिट हो गया, मार्जिन विल गेट रिलीज, बट exporter will get at a lower rate, so there will be a loss in the spot market, but this will get 1.5 लाख का, offset by the profit in the समझ in गया the सर। futures market। तो आपका रेट 74 रुपए 60 पैसे ही होगा उसके अंदर दोनों केस में। So you don't करेक्ट, participate in the upside, but you participate in the when the market goes, against your wishes, then you are totally protected। ओके, सो यहाँ पर आपका जो है रेट क्या हो गया, 75 रुपए 60 पैसे रेट बढ़ गया आपका, तो आपको लॉस हो गया क्योंकि आपने सेल फ्यूचर्स करा था, तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज, जिस बंदे ने आपको ये पोजीशन दी थी, शॉर्ट पोजीशन आपने करेक्ट, शॉर्ट की थी, अगले ने लॉन्ग करी थी, तो लॉन्ग वाले को 1 लाख मिल जाएगा, शॉर्ट वाले को 1 लाख देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, एक्सपोर्टर को आप 75,60,000 मिल जाएंगे, बट सिंस ही हैज लॉस्ट 1 लाख रुपीज, सो नेट नेट ही इज अगेन बैक टू द स्क्वायर वन, ही इज टोटली हेज्ड एट 74.60। इज इट ओके? यस। अच्छा, अब हम चलते हैं ऑप्शंस में, ओके, तो हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर मैं आपको इसको करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, ओके। सो एग्जांपल और ऑफ हेजिंग, ऑप्शंस को करने के लिए पहले हमें बताना भी तो पड़ेगा ना ऑप्शंस क्या होते हैं क्या नहीं है। हाँ, अभी आप इसको आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ भी आता चला जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो समझ में आया है, मैं वैसे बोल रहा हाँ हूँ कि हाँ इसकी हाँ हाँ, राइट आपको स्पॉट बताना को पहले चाहूंगा। बताना, जैसे हमने फ्यूचर और वो बताया हाँ था। हाँ, तो इसमें भी क्या है, नहीं आप वो हमने बताया ना, 1000 लॉट सब कॉन्ट्रैक्ट सब सेम है, ओके। अब देखो आपको
कोई ज्यादा कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि देर इज वन ऑप्शन बायर एंड वन ऑप्शन राइटर। कॉल पुट बताना पड़ेगा हाँ ना कॉल उनको अभी और आएगा, अभी आएगा। सो XYZ इज एन इम्पोर्टर हम्म, ऑन 15th ऑफ नवंबर, उसको क्या वही सेम पोजीशन है, $1 लाख जो है उसने पेमेंट करनी है। ओके, और आज 15 नवंबर है और उसको पेमेंट देनी है 29 दिसंबर को। ओके, हम्म, तो इसकी एक्सपायरी जो है वो 29 दिसंबर है। ओके, फाइन। सो ऑप्शन आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा। तो आप चूज करोगे 74.25। नाउ आपने क्यों चूज करा, क्योंकि वेरियस स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं स्टॉक एक्सचेंज में। क्योंकि स्पॉट रेट अभी चल रहा है 74 रुपए 27 पैसे का। ओके, तो आप एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे जो विच इज नियर टू द करंट मार्केट प्राइस, सो इट इज कॉल्ड एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ओके, हम्म, जिसमें प्रीमियम बड़ा रीजनेबल होता है। अगर आप हम्म, स्टॉक स्ट्राइक प्राइस 73 रुपए लेते हो तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, 72 लोगे तो प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट उस रेट से शुरू होगा 73 74 से। 74 और 75 लोगे तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, 71 लोगे तो आई मीन डीप इन द मनी हो जाएगा। तो इन द मनी ऑप्शंस महंगे होते हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो फिर आउट ऑफ द क्यों नहीं लेगा, उसमें तो सस्ता पड़ेगा हाँ लेकिन उसको। आउट ऑफ द जो अगर लेगा तो फिर उसका प्रॉफिट होगा ही नहीं, अगर रेट जो 74 से। तो वो ये हो सकता है कि वो एक्सपायर कर जाए ऐसे हाँ अभी अभी दिखा रहा हूँ आपको, समझ विदाउट में आ जाएगा, अभी एक्सपायरी। दिखा रहे हैं। तो 74 रुपए 25 पैसे का आपने रेट ले लिया, जो कि विच इज एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो आपने उसका प्रीमियम देखा तो 25 रुपए प्रीमियम है, 25 पैसे प्रीमियम पर डॉलर। तो अब मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, पहले ही स्टॉक एक्सचेंज लेके चलता हूँ। ओके, मुझे पहले साइट आपको शेयर कर दूँ स्लाइड। ओके, आपको साइट दिखाई दे रही है कोई? हाँ जी। अच्छा, मैं आपको एक साइट ले जाता हूँ, ICICI ये तो वैसे डायरेक्ट। उसके एनएससी वनएससी के उस पे भी आते होंगे ना। हाँ उसमें भी आते हैं, मैं अपना लॉगिन है तो मैं उसी में जाता हूँ। अच्छा आपका अपना वो है। हाँ अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। PARAGH। आपने इसमें अकाउंट खोला हुआ है अपना। मेरा तो अभी पुराना चल रहा है, ब्रोकर के थ्रू वही चल रहा है, बहुत साल पहले अच्छा खोला नहीं, था। मैंने तो ये तो मेरे से पास करीब 25 साल हो गए मेरे पास है। मेरे पास भी ऐसे मतलब हमने तो उस समय ब्रोकर के थ्रू करते थे, तो वही है चल रहा हाँ है। लेकिन मेरा ये ऑनलाइन है तो ये मुझे काम आता है हमेशा, मतलब एजुकेशन में भी काम आता है। हाँ मैं सोच रहा हूँ और मैं भी खोल ही लूंगा एक आधा, कर लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं ना उसका क्रोम खोलता हूँ जरा, क्रोम में बेटर आता है। नहीं तो ये तो उस पे भी दिख जाते होंगे एनएससी की साइट पे अगर आप जाओगे। नहीं वो मुझे पता नहीं, क्योंकि उसके सबका अलग अलग होता है ना, तो मैंने को तो इससे मैं काफी मतलब वाकिफ हूँ, तो इसलिए मैं इससे करा रहा हूँ। हाँ ये दिख रहा है आपको क्रोम? नहीं अभी नहीं दिख रहा। अच्छा मैं इसको फिर शेयर कर देता हूँ, अब आ रहा मार्केट, है? हाँ हमारा मार्केट तो टूटती ही जा रही है बुरी तरह से। हाँ मतलब ये तो ऐसा है कि 20% तो कम से कम करेक्शन होगी होगी। 20% कहाँ जी, बहुत हो गई, रोज 1000 पॉइंट गिर रही है, आज भी 1000 गिरी हुई है। भाई ऐसा था 62,000 था ना, तो ट्वेंटी हाँ परसेंट करो वहां से तो हाँ फ्रॉम द पीक की बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे आप दोगे ऑप्शंस में, तो आपके पास क्या है कि कॉल ऑप्शन भी है, पुट ऑप्शन भी है। तो हम्म, अगर तो आप इंपोर्टर हो, ओके, तो यू विल बाई अ कॉल ऑप्शन। और अगर आप एक्सपोर्टर हो तो यू विल बाई अ पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन मीन्स यू एक्सपेक्ट द डॉलर टू गो अप, तो तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि वट एवर यू विल गेन इन डॉलर, दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू लूज इन योर एक्चुअल इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, सो इट विल ऑफसेट योर दैट गेन एंड लॉस। तो आपको कॉल ऑप्शन लेनी पड़ेगी अगर आप इंपोर्टर हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको पुट लेनी पड़ेगी। आई एक्सप्लेन दैट। ओके, सो हम्म, अंडरलाइन आपको यहाँ पर जो है आपको ये देना पड़ेगा यूएसडी, आपको रेट डाला आपने, तो अंडरलाइन जो है वो यूएसडी आईएनआर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट यहां देखेंगे। ओके, हम्म। तो यहां पर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये जैसे 13 मई है, अभी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे हैं। तो सपोज आपका जो है आपने पेमेंट करनी है वो करनी है सपोज फॉर एग्जांपल मई में। ओके, मई में करनी है या जून में करनी है, कौन सा महीना लें? ऑप्शंस जो है वो वीकली अवेलेबल है, फ्यूचर्स भी वीकली अवेलेबल है।
नहीं, ये ऑप्शंस वीकली अवेलेबल हैं, फ्यूचर्स भी फ्यूचर्स भी देख सकते हैं, ये देखो फ्यूचर्स भी वीकली अवेलेबल हैं। अच्छा फ्यूचर्स में भी ये देखो यूएसडी आईएनआर सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप ये देखो कि ये भी जो है 13 मई, 20 मई, तो इस 27 पे तो मई ये बड़ा वीकली, सट्टा खेल सकते हैं लोग बैठ के, हफ्ते के हफ्ते का लेगा खेल हाँ सकते हफ्ते के हफ्ते खेल सकते हैं। और फिर 12 कॉन्ट्रैक्ट है हर महीने के। आप ये देखो ये 26 अप्रैल 2023 तक चल रहा है। और रेट जो है, अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो अप्रैल 23 का, एक साल के बाद का, तो 80 रुपए का डॉलर हैं। फॉरवर्ड मार्केट में मिलेगा। एक समय पर 12 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। हाँ, जैसे क्या होता है कि आपकी, अब आप एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, आप सपोज इंपोर्टर हो और आपकी पेमेंट जो है अक्टूबर 2022 में होनी है, तो फिर आप 2022 का ये कॉन्ट्रैक्ट लोगे, उस टाइम आपको डॉलर 78 रुपए 80 पैसे का मिल रहा है मार्केट में। ये तो फ्यूचर है ओके, ना। हाँ ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। तो जो जिस महीने में आपको एक्चुअल आपकी जो ट्रांजैक्शन है, आपको वो महीना चूज करना पड़ेगा। वो समझ गया मैं। सपोज आपको दिसंबर में आपको पेमेंट मिलनी है, तो सपोज यू आर एन 79.5। एक्सपोर्टर एंड यू आर गोइंग टू गेट द पेमेंट इन दिसंबर, तो फिर आपको ये दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा जो एक्सपायर हो रहा है 28 दिसंबर को। ये इसमें एक्सरसाइज जाके प्राइस आपको बन गेट है। जाएगी। हाँ जी, ये प्राइस बन जाएगी ना, इससे एमटीएम होगा, मार्क टू मार्केट इसके हाँ हाँ, बेस पे होगा इससे फिर। अगर इससे ऊपर जाएगा और आपने तो कॉल, आपने प्रॉफिट सपोज होएगा। फ्यूचर बाई करा है, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, समझ अगर गया। इससे नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। बट ऑप्शन के मैं कह रहा हूँ, एक समय पर एक, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो, तो हाँ एक एक्सपायरी के 12 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं ऑप्शन के, आप ये कह रहे हो। हाँ, जैसे हाँ, एक एक पर्टिकुलर हर महीने के, हर महीने के, हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट, इसमें भी हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और जो करंट मंथ चल वीकली रहा भी है है उसके ना। 4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब यहाँ देखते हैं, देखो यूएसडी आईएनआर। ओके, सपोज हम कॉल ऑप्शन देखते हैं, ओके, और कॉन्ट्रैक्ट चूज करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो मई का महीना चल रहा है उसके तो वीकली ऑप्शंस हैं। 13 मई जो है अभी इस महीने, इस वीक में 13 मई क्लोज होगा, उसके बाद फिर क्लोज होगा 20 मई। नहीं, इनकी ठीक कोई, है, ये जो जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, इसकी कोई नंबर की कोई लिमिट होती है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट आते हैं नहीं, एक एक एक्सपायरी ये के। देखो ऐसा है कि जैसे मैं आपको दिखा दूं कि अब सपोज पहले हम अपना महीना चुनते हैं, आपको पहले चुनते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो सपोज जून में होनी है। हम्म। तो मुझे जून के महीने में जाके खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पर, ये हम्म। मेरे लिए सारा एप्लीकेबल है जून का महीना। आ गया, आ ठीक है, गया। फाइन। अब मुझे इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है? ये 75 रुपए स्ट्राइक प्राइस का है, ये 76 रुपए स्ट्राइक प्राइस का है, ये 76.50 का स्ट्राइक का है। तो आप देखो 75 जो है वो इस टाइम जो है 77 का रेट चल रहा है ना, डॉलर का। तो वो 1 रुपए 20 पैसे के प्रीमियम मिल रहा है। और अगर मैं 75 वाला ले लूंगा तो उसका प्रीमियम 2 रुपए 88 पैसे है। समझ गया यानी हूँ। कि मेरा प्रॉफिट 75 के ऊपर जो होगा वो होगा। तो मैंने कॉल ऑप्शन खरीदी, तो अगर रेट क्लोज होता है 78 पे, तो मुझे 3 रुपए का फायदा हो जाएगा, बट मैंने 2 रुपए 88 पैसे तो प्रीमियम पे कर तो दिया। वो वही बात आ गई, उसने हाँ, वही बात होगी। दूसरे का तो प्रीमियम लगा इसलिए, दिया उस हाँ पे। इसलिए आपने जो है वेरी क्लोज टू अभी का जो तो ऐड 77.50 द है मनी हो सपोज, गया। आपने क्या करा, आपने रेट अभी देखा स्पॉट मार्केट में रेट क्या चल रहा है। स्पॉट में चल रहा है 77.57। ओके, ये देखो आप, हम्म। ठीक है। तो ठीक है। आपने क्या करा, अब 77.57 के आसपास का रेट आपने देखा, तो 75.77 ये रेट आ रहा है ना, या 76 था, कितना रेट था? 77। हाँ, 77.57 था। हम्म। तो यहां मैं गया तो इसका रेट चल रहा है 62 पैसे का प्रीमियम चल रहा है। दैट मीन्स आई हैव टू पे 62 पैसा पर डॉलर। ओके, तो अगर मैं आउट ऑफ द मनी लेता हूं तो ये देखो, और ये कम तो हो सिर्फ 14 जाएगा। पैसे हो गया। 78 रुपए का रेट चल रहा है 14 पैसे का। तो मैं अगर आउट ऑफ द मनी लेता हूँ तो मुझे तो फायदा तब होगा जब 78 रुपए 50 पैसे से ऊपर जाएगा। तो आज ही रेट क्योंकि 77 है। ₹78.70 से ऊपर की, 14 पैसे मतलब 65, 14 पैसे का तो बिल्कुल। प्रीमियम भी है। सो इसलिए अगर मैं सोचता हूँ कि डॉलर बहुत ऊपर जाएगा तो मैं अपना प्रीमियम कम कर लेता हूँ। तब फायदा ओके, है। क्यों, मुझे पता है 80 तो डॉलर जाएगा ही जाएगा, मुझे फायदा हम्म। हो जाएगा। बट मेरा व्यू है कि भाई डॉलर तो इतना ज्यादा वोलाटाइल नहीं है, तो आई विल चूज एट द मनी विच इज वेरी क्लोज टू से 77.50 एंड आई विल पे 48 पैसा 48 और पैसे 62 पैसा, वट एवर आई फील लाइक, आई विल पे दैट प्रीमियम एंड गो एड। ओके, तो ये सारे जो है ये सब डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, समझ। सॉरी इन द मनी ऑप्शंस हैं, ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं, और ये एट द मनी ऑप्शन है इस टाइम चल रहा है। करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं वापस अपने एग्जाम्पल पे। हम्म। बस 5 मिनट लगेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉरेक्स, अब आप ये देखो, आप कि ये आपको आ रही स्लाइड आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा कि 74 रुपए 25 पैसे विच इज एट द मनी,
आपको 25 पैसे प्रीमियम देना पड़ रहा है और एक एक्सपायरी 29 दिसंबर को है। आपकी आज की डेट 15 नवंबर है, आज 15 नवंबर है और आपकी जो रेमिटेंस होनी है, आप इंपोर्टर हो, आपको पेमेंट देनी है $1,00,000 इसमें वैसे 29 एट द दिसंबर। मनी लिखा नहीं, तो ये हम मान के चल रहे हैं 74-25 ही स्पॉट हाँ है। हाँ 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 हाँ, मैंने एग्जाम्पल देख के बनाया था, तो मैंने देखा भी सबसे तो ज्यादा कम पहले वाला प्रीमियम जो पे। एग्जांपल था उसी का। हाँ हाँ, आप बेशक एट द मनी इन द मनी में उसको छोड़ भी सकते हो। आप बोलो कि इसका एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 74.25 दिस इज द प्रीमियम, हम्म, but if you happen, because the rate is 74 today, so you have chosen very close to at the money where the हम्म, premium is the lowest. ठीक अगर है, आप इन द मनी करोगे तो और इन द मनी चलते जाओगे तो महंगा होता जाएगा प्रीमियम। ठीक है, ठीक है। वो तब करोगे जब आप एक्सट्रीमली बुलिश हो ऑन डॉलर। हाँ, और अगर आप एक्सट्रीमली बेरिश हो डॉलर पे, सॉरी, अगर आप फिर आप जो है मतलब जो अगर आप इतने बेरिश नहीं हो तो फिर आप आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे। अगर आप मतलब बुलिश हो बट नॉट वेरी बुलिश, देन यू विल गो फॉर आउट द एट, मनी। हाँ, मतलब एट द मनी आपको यूजुअली एट द मनी चूज करना चाहिए। यू आर राइट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि अभी प्रीमियम चल रहा है 25 पैसे का। अब आपने क्या करें, सो कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉल ऑप्शन बाई करा बिकॉज यू आर एन इंपोर्टर। यू विल मेक मनी ओनली इन स्टॉक मार्केट इफ यू बाय अ कॉल ऑप्शन इफ द डॉलर गोज अप। करेक्ट। जब डॉलर ऊपर जाता जाएगा आपको स्टॉक एक्सचेंज से तो फायदा होता जाएगा, बट आपकी एक्चुअल रेमिटेंस जो आपको करनी है उसमें नुकसान होगा। दोनों ऑफसेट हो जाएंगे। ओके फाइन। अब आपने आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो आपने पहले तो ऑप्शन प्रीमियम पे करा, $1,00,000 के ऊपर आपने 25 पैसे प्रीमियम पे करा, 25,000 रुपए आपने प्रीमियम पे कर दिया। ओके, सो कॉल राइटर को 25,000 प्रीमियम मिल गया, यू आर कॉल बायर। ओके, नाउ लेट्स से कि अब डॉलर पहुंच गया 75 रुपए 25 पैसे का, सो अब बढ़ गया। ओके, तो यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज योर कॉल। फाइन। सो आपको जो है 75 रुपए 75 पैसे से माइनस 74 रुपए 25 पैसे, आपको एक अब लाख रुपए आपका वो का हट गया है स्क्रीन। स्क्रीन हट गई। अच्छा, ओके। अब आ रही है स्क्रीन? हाँ जी। तो अब आपने क्या करा कि अब रेट हुआ 75 रुपए 75 पैसे और आपने 74.25 का स्ट्राइक प्राइस लिया था, तो आपको 1,00,000 रुपए का फायदा हो रहा है। यू आर गोइंग टू फर्स्ट एक्सरसाइज द कॉल और आपको जो है क्या कहते हैं 1,00,000 रुपए का 1.5 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। बट आपको 25,000 रुपए प्रीमियम पे करा था आपका, तो आपको नेट एक गेन क्या हुआ 1,25,000। सो 75 माइनस 75 जो आपका रेट अभी चल रहा है और आपने खेला था मतलब स्ट्राइक प्राइस चुना था 74.25, दोनों को माइनस करा इंटू 1,00,000 तो आपको 1.5 लाख का फायदा हुआ। 25,000 आपने प्रीमियम दिया था, आपको नेट नेट 1,25,000 का। तो इंपोर्टर हैज टू पे 75 लैक्स। अब रियल मार्केट में अपने जब आएगा 29 दिसंबर को, तो आपको 75,75,000 रुपए देना पड़ेगा इंपोर्टर को बैंक से लेके। आपको स्टॉक एक्सचेंज तो सिर्फ 1.25 लाख का प्रॉफिट दे दिया आपको, लेकिन आपको एक्चुअल पेमेंट करनी पड़ेगी इंपोर्टर को 75,75,000 इन द स्पॉट मार्केट। तो आपका नेट आउटफ्लो जो होगा दैट विल बी 74-50 ही पड़ जाएगा। 74-50 होगा। अब आप जो है यहाँ पर हो गए। ये तो हो गया अगर अगर रेट ऊपर जाता है तो आपका रेट फिक्स है। ओके, बट अब क्या होता है कि एज्यूम द रेट इज 73, सो ही इज नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज हिज राइट। एक्सपायर रेट कर। नीचे आ गया, अब एक्सरसाइज नहीं करोगे, यू विल लूज 25,000 प्रीमियम। ओके, अब हम देखते हैं इंपोर्टर विल बी पेइंग एट 73 रुपीज। ओके, तो 73 लाख रुपए उसका आउटफ्लो हो जाएगा, एक्चुअल आउटफ्लो इन द अंडरलाइन इन द मार्केट। ओके, लेकिन उसका आउटफ्लो हुआ 75-25, तो मतलब ही गेट्स अ गेन ऑन द एप्रिसिएशन। तो वहां तो उसको 74 रुपए 50 पैसे का मतलब वो हो गया था, हेज हो गया था। बट जब नीचे आया तो यू गॉट फायदा हो गया। द, हाँ, आपको जो अपसाइड है वो भी आपने इनकैश कर ली। आपने सिर्फ लूज करा 25,000 का प्रीमियम, और अब आपको जो है जो आउटफ्लो हो रहा है वो 73,25,000 हो रहा है। तो यू आर मेकिंग अ गेन इफ यू आर चूज एन ऑप्शन, तो आपके फेवर में जाता है। यू विल नॉट एक्सरसाइज योर ऑप्शन, यू विल लूज द प्रीमियम एंड you will have to enjoy the better price which is prevailing in the spot market. Okay, but you will be losing the premium. So your net outflow will be actual money which you have paid to the importer plus the premium which is 73,25,000. So आपका जो रेट आया है वो 73 रुपए 25 पैसे का आया। ओके, नाउ इफ यू आर एन एक्सपोर्टर तो यही सेम कहानी है। 15 नवंबर को आप आज का डेट है और आपने 1,00,000 रुपए रिसीव करना है ऑन 29 दिसंबर। तो आप जब चेक करा आपने तो 74 रुपए 25 पैसे का प्रीमियम 25 पैसे था, तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नाउ यू गोइंग टू बाय अ पुट ऑप्शन। ओके, क्योंकि यू आर एन एक्सपोर्टर
So you have a long सेल position in your real I mean transaction. So you are going to take a short position in the options by taking a put option. तो आपने 74 रुपये 25 पैसे पे 100 कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीद लिए और आपने वही 25,000 रुपए का प्रीमियम दिया। अब पहला ऑप्शन कि रेट जो है 73 रुपये हो जाता है, तो यू आर मेकिंग अ गेन, सो यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज योर राइट, क्योंकि ये आपके फेवर में चला, आपने पुट ऑप्शन खरीदा, रेट कम हो गया, रेट जो था उस टाइम जो आपने खेला था वो 74 रुपये 25 पैसे का स्ट्राइक प्राइस था, अब 73 आ गया, तो 1.25 रुपए का गेन हो रहा है आपको। तो आपको जो 1.25 रुपए का गेन मिल जाएगा 1,25,000, लेकिन आपने प्रीमियम पे करा हुआ है, so your net gain will be 1 lakh. So exporter will receive 73 lakhs because the rate today is 73. So you're going to get that. So net inflow will be 74. आपको 1 लाख गेन भी हो रहा है, क्योंकि अब क्या हुआ कि रेट 73 रुपये आ गया। एज एन एक्सपोर्टर यू आर लूजिंग इन द रियल मार्केट, क्योंकि उस टाइम 74 रुपये 25 पैसे का स्पॉट रेट चल रहा था, तो 73 रुपये आपको लॉस मिल रहा है एक्सपोर्ट में, एक्चुअल में, बट दैट विल गेट ऑफसेट बिकॉज यू आर गेटिंग 1 लाख रुपीज gain फ्रॉम from द the stock ऑप्शन। market. So your total inflow will be 74 lakhs. You will be hedged at 74. बट अब हम देखते हैं कि अगर रेट बढ़ जाता है 75 पैसे, 75 रुपये 75 पैसे, अब तो एक्सपोर्टर खुश है कि रेट बढ़ गया। ओके, सो ही विल नॉट एक्सरसाइज, ही इज नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज हिज राइट, he is going to lose 25,000 premium, but now he is going to get, in real market he is going to get 75 lakhs, 75 lakhs 75,000. Okay, but his net inflow will be to the tune of, after the premium deduction will be 75 itna, so he gains on dollar appreciation. Okay जी, तो ये हो गया बस। समझ गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ये बोलता है, इसमें आपने, इसमें आगे स्वैप भी है? स्वैप नहीं है? हाँ जी, स्वैप नहीं है ना इसमें आगे? क्या नहीं है? स्वैप नहीं है ना? स्वैप, हाँ, स्वैप्स नहीं है। स्वैप्स तो अब स्वैप जो होता है, क्रॉस करेंसी स्वैप्स होते हैं, वो सिर्फ तब होते हैं जब लोन वाली ट्रांजेक्शन्स में होता है, तो वो उसमें वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। हेलो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वो बताने की जरूरत नहीं है इनको। हाँ, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बोलो, these are the three instruments which are mainly been used in the forex exchange market. तो अब अगर कोई Swaps ये are बोले used कि only in the loan transactions. आप ये कह सकते हो जो लोन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बड़े बड़े लोन्स होते हैं, उसमें स्वैप ट्रांजेक्शन चलती हैं, जिसमें कि जब स्वैप करते हो, लोन स्वैप करते हो एक दूसरे से, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में वहां पर आपको क्रॉस करेंसी यूज होता है। सो यू कैन से दैट इट इज नॉट यूज्ड इन फॉर हेजिंग पर्पसेस, इट इज यूज्ड फॉर इंटरेस्ट रेट हेजिंग पर्पसेस। अब दूसरा ये है कि जैसे कोई ये बोले, अब जैसे ये बता दिया हमने, तो फिर हाँ, ऑप्शन तो हमेशा ही बेटर दिखता है, क्योंकि उसमें प्रीमियम देना है, आप अप साइड पे सारा खेल सकते हो, डाउन साइड पे कोई रिस्क नहीं है आपका। फिर हाँ, फ्यूचर्स अब पे मैं क्यों आपको जाता है बताता कोई? हूँ। बिल्कुल, आपसे कोई पूछता है कि भैया हम तो फिर ऑप्शन में जाएंगे, हम फ्यूचर में क्यों जाएं? लेकिन क्या होता है कि जो ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहे हो ना आप, वो प्रीमियम इतना हाई होता है, क्योंकि जो ऑप्शन राइटर है वो फोकट में, तो उसका लॉस, वो तो उसको तो अनलिमिटेड लॉस है, तो ही विल चार्ज यू एट हायर प्रीमियम देन द रियल वोलेटिलिटी ऑफ द डॉलर आईएनआर। जो डॉलर आईएनआर की वोलेटिलिटी है, उससे कहीं ज्यादा वो वोलेटिलिटी वो अपने प्रीमियम में बिल्ट इन कर लेता है, और प्रीमियम इतना हाई होता है कि आप अपना एक्सरसाइज करोगे नहीं, राइट? So option, hedging through options is very, very expensive. When you are taking either a call option or a put option, when you are buying a call option or a put option, but when you are writing a put option and you are writing a call option, it is always better to be as a writer, because usually the premiums which are running in the markets are so high that it will always benefit you if you are a writer, because you पर are मैंने, the most 90% of the time the call options and put options are never exercised, and they are always, people, leave it, they walk out of the contract, पर and मैंने always कहीं the पर right। पढ़ा था सर कि आरबीआई ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, हर कोई राइटर बन नहीं सकता, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, उसमें कुछ एक उन्होंने सेकंड, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, देखो ऐसा है, मैं आपको एक और बताता हूँ। आप जब आप स्टॉक मार्केट में हो, कुछ नेटवर्थ तो की। आप तो जो मर्जी पोजीशन ले लो, आरबीआई जो है वो मतलब किसी और पर्पज के लिए 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कर सकता है, बट स्टॉक मार्केट ओपन गेम है, आप राइट कर लो या आप बाई कर लो। आपने तो प्रेस बटन दबाया, आपने राइटर बन गए। ओके, आप दोनों ले सकते हो, यू कैन राइट अ कॉल और बाय अ कॉल इन टेकिंग द स्टॉक एक्सचेंज। So it's अच्छा, an open market. It's not that the writers are, there is some people only they can act as a writer, or there are some people as a this thing. So ऐसा नहीं है मार्केट में। और जो आपने पढ़ा है वो मुझे आप शेयर करो एक बार, फिर मैं देखता हूँ क्या क्या। ठीक है ठीक है। जस्ट शेयर विद मी जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आप देखो ये नहीं, यहाँ मैंने आप किसी जाओ, को, ये देखो, ये आपका है ना, ये जो मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज ले आ रहा हूँ, तो इसमें कह रहा है बाई कर लो, या आप ये कॉल आपकी बाई कर स्क्रीन लो वो या वाली आ कॉल रही है, सेल कर स्क्रीन लो। स्क्रीन नहीं शेयर तो हो। बाई सेल दोनों आ रही है,
आप सेल में जाओगे तो यू बिकम अ राइटर, आपको प्रीमियम मिल जाएगा। ये तो क्लिक ऑफ द बटन है, इसके अंदर कोई मतलब गवर्नमेंट की कोई भी मतलब वो नहीं है। अदरवाइज दे विल बी रिस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अगर राइटर नहीं होंगे तो फिर मार्केट कैसे चलेगी? तो दे हैज टू बी इक्वली नंबर ऑफ राइटर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ बायर्स, कॉल बायर्स एंड कॉल राइटर्स एंड पुट बायर्स एंड पुट राइटर, मार्केट तो बैठ जाएगी नीचे। समझे बात? क्योंकि क्या होता है कि अगर नहीं है, अगर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया राइटर्स को कि सिर्फ 4 आदमी राइटर बन सकते हैं और 50 आदमी बायर बनना चाहते हैं, तो कैसे होगे ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज में? समझ गया। हाँ, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी राइटर का होगा वो सिर्फ अगर आप मतलब जैसे आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी जो होते हैं वो राइटर होते हैं ना, इंश्योर जो आदमी इंश्योर करते हैं आपके लिए वो भी राइटर्स ही हैं। आप प्रीमियम पे करते हो अपनी गाड़ी का, दे बिकम द राइटर्स। तो हर कोई आदमी राइटर नहीं बन सकता है, उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। आई वांट टू बिकम अ राइटर ओनली फॉर दोज बिजनेसेस where either you are an insurance business or into a business where you are taking a position like an insurance. Okay, there you have to you act as a writer, so you have to take a क्या कहते हैं आरबीआई लाइसेंस फॉर दैट। ये अगर आप जैसे देखोगे ना, मतलब इस पे भी है 2016 का एक डिसीजन है, नेट पे ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं उस वीडियो में ही देखा था, किसी वीडियो में था ये, उसने बोला हुआ। तो उसने कहा था कवर्ड कॉल में आप